Jamiatul Muflihat and Falah Group of Schools towards success in Dunya and Akhirah. Admissions open. ریاستی حکومت بالخصوص چیف منسٹر ریونت ریڈی اور مشیر حکومت تلنگانہ محمد علی شبیر سے اظہار تشکر کے لیے ایک تقریب حیدرآباد کے انور علوم کالج میں منعقد کی گئی۔ تفصیل کے لیے دیکھیے یہ رپورٹ۔ تلنگانہ کے مائنورٹی ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز کے انتظامیہ کی جانب سے شہر حیدرآباد کے ملے پلی علاقے میں واقع انور علوم کالج میں ریاستی حکومت بالخصوص چیف منسٹر ریونت ریڈی اور مشیر حکومت تلنگانہ محمد علی شبیر سے اظہار تشکر کے لیے ایک خصوصی تقریب منعقد کی گئی، جس میں تلنگانہ حکومت کے مشیر برائے SC ST BC اور اقلیتی امور محمد علی شبیر نے مہمان خصوصی کے طور پر شرکت کی، جبکہ اس موقع پر انور علوم کے اعزازی سیکریٹری نواب محبوب عالم خان، لویا لا کالج چیئرمین فادر راجو، سلطان علوم ایجوکیشنل سوسائٹی چیئرمین ظفر جاوید، آزاد گروپ چیئرمین غوث محی الدین، شاداں گروپ آف انسٹیٹیوشنز چیئرمین شاہ عالم رسول خان کے علاوہ تلنگانہ کے تمام اقلیتی اداروں کے سربراہان موجود تھے۔ اس موقع پر تعلیمی اداروں کے سربراہان نے درپیش مسائل سے محمد علی شبیر کو واقف کرواتے ہوئے امید ظاہر کی کہ مسائل کی یکسوئی کے لیے وہ نمائندگی کریں گے۔ ساتھ ہی انہوں نے اقلیتی کالجوں میں بغیر کسی شرط کے 120 سیٹوں کے اضافے کے لیے ریاستی حکومت، چیف منسٹر اور محمد علی شبیر سے اظہار تشکر کیا۔ No problem about it. Absolutely no problem. So I come to the conclusion, because the timing running out, that our problems which we have represented, you see, there is another very serious problem which I have represented to the Honorable Chief Minister. You were there. That is the admissions in undergraduate degree courses. Minorities are exempted by a Supreme Court order, clear order in Islamia Academy matter, that they cannot enforce it. No regulatory authority can enforce admissions as far as minority institutions are concerned for undergraduate courses, and the government has exempted us. But there is a huge problem to that. When we represented the matter to the previous government, they also exempted us. But as a punitive step, they stopped the scholarship to all those students who took admissions in Muslim minority colleges. This punitive action must end. There cannot be any compromise. Our students are very poor, absolutely poor. میرے سفید کپڑوں سے یہ اندازہ مت لگاؤ کہ میری قوم کا ہر آدمی سفید کپڑے پہنا ہوا ہے۔ ہماری میجارٹی غریب ہے، ہماری زندگی ان غریبوں کے لیے وقف ہے۔ میری قوم کے کوئی شک و شبہ نہیں ہے، زندگی کے تقریباً 40 سال انہی کی خدمت میں گزارا ہے، اور اس قوم کی خاطر کھڑے رہ کے لڑا ہے، پیچھے نہیں ہٹا ہے، اور اللہ تعالیٰ کا فضل ہے کہ کامیابی اللہ تعالیٰ نے دی ہے۔ Also get scholarship like anybody else who is being admitted by the government to DOST. DOST is admitting, and all those students get their scholarships, and we have a right to admit our students, and although we are exempted, still our students do not get their scholarships, and therefore what happens is ultimately the numbers go down because our students are not able to get their scholarships, and therefore they do not want to come to the college, although we run our colleges very well. And from this point of view, I would like to once again ask our Shabir Ali sir, kindly give us a permanent GO exempting us from at the time of our admissions, at the same time asking government to give scholarships for our students. And we are extremely grateful, sir, for all the helps that we have given all these years, and particularly our Muslim friends who have been voicing their requests to the government, because of whom, of course, we are a very small minority. We also are able to get whatever we require from the government. And at this juncture, joining with our Muslim friends, I would like to make this request, namely, when we request you
kindly listen to us and take us wherever it's necessary in order to get our requests heard. Why 10%, additional 10% for EBC reservation is not given in minority institutions, sir? If it is a non-minority institution, if they have 100 seats, 100 plus 10, 110 seats will be put in the counseling. If it is a minority institution, only 100 seats. Why, sir? Why this discrimination? For seats which are in demand like DED, computer science also, all non-minority institutions 10% more. For minority institutions only whatever permitted. Sir, this is also an issue which has to be looked into, sir. Sir, there are about 14-15 universities, sir. Why not one university is given to Muslim minorities, sir? Why not one university is given to Christian minorities, sir? Can't we run? Are we not aware of the rules of how to run, administer a university? Sir, it is very easy to run a university than running a school, sir. Kindly, our request will be, there are about now, sir, till date, not even one, this should be the price because there are more number of Muslim population in Hyderabad, sir. वज़ीर मुशीर हुकूमत तेलंगाना मोहम्मद अली शब्बीर ने अपने खिताब के दौरान तमाम हाज़रीन को ये यकीन दिलाते हुए कहा कि तेलंगाना की कांग्रेस हुकूमत रियासत भर में अक़लियती तालीमी इदारों को मजबूती फराहम करेगी। उन्होंने रोशनी डाली कि रियासत के इंतज़ामिया ने अक़लियती कॉलेजों में बगैर किसी शर्त के 120 सीटों का इजाफा किया है, जो कि एक बेमिसाल इक़दाम है। शब्बीर अली ने दोस्त अमल के बगैर दाखिला लेने वाले तलबा के स्कॉलरशिप के मसले से मुताल्लिक़ वज़ीर आला से नुमाइंदगी का वादा किया। शब्बीर अली ने जोर देकर कहा कि तमाम अहल गरीब तलबा को स्कॉलरशिप हासिल करने का आईनी हक हासिल है, जिसे महज इंतज़ामी तरीक़ेकार में इख्तिलाफ की वजह से रद्द नहीं किया जाना चाहिए। वहीं ज़ेर इल्तिवा फ़ीस की वापसी के वाजिबात के बारे में भी शब्बीर अली ने बताया कि वज़ीर आला इस मामले पर पहले ही अंदरूनी तौर पर बात कर चुके हैं। उन्होंने यकीन दिलाया कि किसान कर्ज माफ़ी के अमल की तकमील के बाद फीस रियम्बर्समेंट मसले पर तवज्जो दी जाएगी। इम्कान है कि सितंबर के पहले हफ्ते तक तकरीबन 75% वाजिबात अदा किए जाएंगे। उन्होंने मजीद बताया कि चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने सालाना तमाम फीस रियम्बर्समेंट बिल्स को ग्रीन चैनल के जरिए क्लियर करने की तजवीज़ पेश की है, ताकि इस बात को यकीनी बनाया जा सके कि कॉलेज इंतज़ामिया और तलबा को मुश्किलात का सामना ना करना पड़े। मोहम्मद अली शब्बीर ने यह भी याद दिलाया कि कांग्रेस हुकूमत ने मुलाजमतों और तालीम में 4% मुस्लिम रिजर्वेशन मुतारिफ करवाया था। अगरचे इस पर अमलावरी साल 2004-05 में की गई, लेकिन ये अमल 25 अगस्त 1994 को जियो 30 के इजरा के साथ शुरू हुआ था। मोहम्मद अली शब्बीर ने ऐलान किया कि कांग्रेस पार्टी मुस्लिम रिजर्वेशन की 30वीं सालगिरह बड़े पैमाने पर मनाने का मंसूबा रखती है। उनका कहना था कि मुसलमानों को तालीम और रोजगार में 4% रिजर्वेशन की फरहमी के 30 साल की तकमील पर 25 अगस्त को शहर में बड़े पैमाने पर तकरीब मुनक्किद की जाएगी। इन 1 वीक के अंदर सारे कॉलेजेस के उनके उसको कंप्लीट करके भेजा के बोला, डरो मत, कांग्रेस की सरकार है, ये आपकी सरकार है, ये मुस्लिम क्रिश्चियन दलित के वोटों से बनी हुई सरकार है। आपको बिल्कुल दाम है कि जो रेवंत रेड्डी साहब ने ब्लैंकेट परमिशन दे दी कि जितने माइनॉरिटी कॉलेज है पूरे 120 सीटें बढ़ा दो, जाओ 1, 2, 3 नहीं। मैं एक्चुअल कुछ ही रिप्रेजेंटेशन आए थे, भिजाया तो उन्होंने बोले शबीर भाई कहीं कोई 1, 2 पूरे ले लो, जितने इंजीनियरिंग वाले जो लेना चाह रहे ले लो। चल, ऐसा ब्लैंकेट ऑर्डर शायद ही कभी मिला होगा कि वन साइड आप लोग ऑनलाइन में कि स्कॉलरशिप जो है इसमें हमारे बच्चों को नहीं आ रही, जिससे ऑनलाइन में यानी ऑफलाइन हो जाने के बाद दोस्त से माइनॉरिटीज को तो एक्सक्लूड कर दिए, लेकिन जो एक्सक्लूड हो गए वो गवर्नमेंट के बेनिफिट्स नहीं मिल सक रहा। ज़रूर मैं पूरी कोशिश करूंगा हुकूमत के सामने ये तमाम चीज़ें ज़रा मुझे सही तरीके से आप लोग रिप्रेजेंटेशन बना के देंगे तो मैं उनको भी इंक्लूड करके ये जिस तरीके से वाले परेशान हैं। बादशाह मोहिउद्दीन साहब तो बेचारे हमेशा यही कहते हैं कि शब्बीर साहब इतने 22 करोड़ के करीब हमारे फीस रियम्बर्समेंट वगैरह स्कॉलरशिप्स के प्रॉब्लम से सबके ही है। कॉमर्स का 15 अगस्त को ख़त्म हो जाएगा और छोटे छोटे होने के बाद फर्स्ट वीक ऑफ सितंबर में ज़रूर अप टू 75% तक हम लोग आप लोगों के पुराने ड्यूज जितने हैं उसको क्लियर करके उसके बाद सीएम साहब ने ये कहा कि इसके बाद ये इंस्टीट्यूशंस वालों को मत सताओ, इनको ग्रीन चैनल में रखो।
साल साल भी हमारे पीछे फिरना नहीं, और ये लोग एहतजाज करने की जरूरत नहीं है, बच्चों को परेशान करना नहीं है। बच्चों को सर्टिफिकेट देने के लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रहे हैं, क्योंकि आप लोग भी बोलते कि भाई गवर्नमेंट दी तो हम देंगे ना। तो ये तमाम प्रॉब्लम्स के लिए बेहतर है कि इसको ग्रीन चैनल में रखने का सीएम साहब ने इरादा बना लिया है, और नेक्स्ट टाइम ज़रूर, क्योंकि सीएम साहब को मुझे डरे हैं, आप लोग बहुत जल्द मैं सीएम साहब से भी टाइम दिलाकर ये 3-4 मसाइल के साथ आप लोगों को इंटरेक्शन मीटिंग में लगाऊंगा। ये बेहतरीन आइडिया है। और एक नई बात भी हमारे शाह आलम ने कहा, मैं नहीं कहना चाह रहा था, उन्होंने बता दिए कि मैंने सिर्फ 1 वीक के अंदर मुस्लिम लॉ कॉलेज के लिए, क्योंकि अरे डॉक्टर इंजीनियर अब बहुत हो गया, अब तुम पहले लॉयर्स को पैदा करो, वकला की ज़रूरत है हम लोगों को। तो उसके ऊपर क्योंकि मरहूम वज़ारत रसूल खान साहब की एक बड़ी एक ही रीति थी, दवाखाने अपोलो में है, मैं मिलने गया, शबीर वो मेडिकल कॉलेज क्या हुआ बोले, हाथ में हाथ दो बोले, हाथ दिया मैं, वो क्या होता, मैं रहता नहीं रहता, मगर वो कॉलेजेस होना, यूनिवर्सिटी होना, बच्चों में 25,000 बच्चे पढ़ना मेरे कॉलेजों में। मैं बोला अरे मैं आपकी मिजाज कुर्सी के लिए आया, मैं पहले आपका सेहत का ख्याल रखो, अल्लाह सेहत दे देगा, कुछ भी होगा, मुझे उसकी फिक्र नहीं है, वो ज़िंदगी दिया मौत भी वही लेगा, मुझे कॉलेज चाहिए। तो बताओ कि उनका जो इरादा था, जिसकी वजह से आज 5 मेडिकल कॉलेज चलाने वाले हिंदुस्तान के अंदर कोई नहीं है, वो वाहिद फैमिली है जिनके 5 है, शादान, VRK, निमरा और आयान, शाह चालू नहीं हुआ शायद, मैं परमिशन तो मैं नहीं परमिशन तो मैंने 5 मेडिकल कॉलेज का परमिशन दिया, फातिमा 6। तो हमारे राष्ट्रपति इस पार्लियामेंट इलेक्शन में पूरा हिंदुस्तान, मुस्लिम, क्रिश्चियंस, दलित भाई, 1 साइडेड 95% वोटिंग करे कि जहां इंडिया अलायंस है वहाँ सारे लोगों को जिताए, नज़दीक के करीब आ गए, जिसकी वजह से आप देखें कि मुल्क के अंदर 10 साल के अंदर काफ़ी JPC का हमने डिमांड किया। पहले JPC रफ़ाइल के ऊपर जो जहाज़ था उसके ऊपर डिमांड करे, 2 महीने बस सड़कों पे फिरे, रोडों पे फिरे, पार्लियामेंट का बैकआउट मोदी जी नहीं चुके। फिर उसके बाद आपके हेडनबर्ग के ऊपर, अदानी के ऊपर करे, 2-3 महीने सारे अपोजिशन बैठे, मोदी जी को चुमटी भी नहीं काटी। लेकिन आज पार्लियामेंट के अंदर मेजॉरिटी नहीं होने की वजह से आज इंडिया अलायंस का एक झटका, आज मोदी जी आसमान से उतर के नीचे आकर ये बोलना पड़ा कि यस JPC के हम दे रहे हैं, जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी को वक्त मिल गया है। तो ये अपोजिशन की ताकत होती है, ये जमहूरियत की होती है। तो आप लोगों की वोट की ताकत, आपकी यूनिटी से छोटे छोटे जमातों पे भरोसा करे बगैर बड़े जमातों पर इत्तेहाद के ऊपर भरोसा करे, जिसकी वजह से हम देखें कि जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी को ये वक्त बिल का गया है। बात लंबी हो गई है, तो मैं ऑल मुस्लिम कॉलेजेस एंड क्रिश्चियंस कॉलेजेस, BC SC सबके लिए मैं हमारे दरवाजे खुले हैं। एनी मोमेंट जब भी आपका कोई प्रॉब्लम हो आप लोग आ सकते हैं। गवर्नमेंट आपकी है, आपके वोटों से बनी हुई है और हम आपके साथ हैं। आपका वेलफेयर, आपकी तरक्की ये हुकूमत की तरक्की है। हमारी सोच आपको आगे बढ़ाना है, सबके साथ सबके विकास दूसरों का स्लोगन है, ये हम परमानेंट चाहते हैं। आपका विकास हो और आप आगे बढ़ते रहें, यही हमारी गवर्नमेंट रेवंत रेड्डी साहब की ख्वाहिश है। खुदा हाफिज, जय हिंद। Jamiatul Muflihat and Falah group of schools are now accepting admissions for 2024-25 academic year with branches in Kottapet, Balapur, Sharif Nagar and Kishanbagh. We offer exclusive education for boys and girls separately along with day-cum residential facilities. From nursery to grade 10, we provide both English medium and Urdu medium education with Islamic studies, Nazira, Hifz, Diniyat and Alimiyat, Fazilat and Tadrib also. Don't miss out on securing the best education for your child, both in this world and the hereafter. Enroll now to guarantee your child's seat and avoid last-minute rush as the seats are limited.